Hello, my dear student. I am Dr. Mithun Chandramaji. I am working as an assistant professor in the Department of Chemistry in a degree college, Asansol, West Bengal. So today, topic of my discussion is high spin and low spin octahedral complexes in light of crystal field theory, and that is popularly known as CFT. Okay. सो मैंने जब बच्चों ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सर्च किया यूट्यूब में, देयर इज टू मेनी वीडियोस आर कमिंग, जिसमें जो वीडियोस है उसमें लिखा है 10 मिनट्स इन वीडियो लेक्चर्स, और कोई कह रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट ट्रिक्स. तो आई थिंक पर्सनली आई थिंक that is not a proper or accurate way to give a concrete and very concrete idea for the listeners or for the students. Okay, so it is need a thoroughly or fundamental concept regarding these chapters, because this chapter is very much important for any competitive exams like NEET, JEE Advanced or Mains, or you can say undergraduate levels, any competitive exams like JAM, like CUAT, and also it is important for a higher higher studies in like NET, GATE also. So I think this chapter need a very fundamental concept regarding. So I in my lecture I do not compromise with time. मैंने जो टाइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, एंड मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा जे दिस वीडियो लेक्चर यू पीपल लिसन्स वेरी पेशेंसली एंड वेरी केयरफुली. ओके, एंड आई गारंटीड यू, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियोस यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम regarding this part of my video lectures. Okay, so we just starts the our topics. Okay, so ये जब टॉपिक्स में मैं डिवाइड किया हूँ, देयर इज सम सब टॉपिक्स जिसमें हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. देन आई विल गो द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल in octahedral geometry, then concept of crystal field stabilization energy as well as pairing energy. Then I will enter into the topics in which conditions the high spin and low spin octahedral complex will form. Then after that the summary and important fact regarding these chapters. Okay, so first ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो व्हाट इज द why this name of this theory is a crystal field theory. ये see, so ये जो पार्ट है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, it starts around 1933 and around 36. Okay, it is, this theory was framed by two scientists, or specifically you can say by two physicists. One is H. Bethe and another is Van Blake. Okay, there is not a chemist, they are physicists. Okay, they are investigated some properties, especially the thermodynamic properties like the hydration energy, crystal lattice energy, like that of some metal salts means conditional metal salts. Okay, and they consider or you can say this model, they लोग जो साइंटिस्ट जो फिजिसिस्ट वो लोग मॉडल किए हैं जे ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है अकॉर्डिंग टू बर्नर, the metal is surrounded by a ligands in different geometry. According to the Van Blake and H. Bethe, whatever may be the nature of the ligands, that means it may be ionic or it may be the non-ionic, or you can say neutral, they consider as a point charge. Like in a crystal, like in a sodium chloride crystal, sodium is surrounded by 6 Cl minus, and they are considered as point charge. Same theory, same concept is applied here by the Van Blake and Bethe, because the metal center is a positive center and the ligand is concentrated or as a point charge. Okay, so there is what is the meaning of this point charge? Because the point charge meaning there is no covalency in between metal and ligands. Okay, that is a separate. So which interaction is acting in between metal and ligands? Like crystal or lattice, there is a electrostatic interactions between
positive and negative centers or the positive and negative moiety. Same concept is there here. Positive and negative interaction is there, and is this interaction is considered as a electrostatic interactions. Okay, and this theory is revived around 1915 and concentrates on the resulting or consider the splitting of d orbitals in different geometries. So अराउंड 1950s जो केमिस्ट थे वो लोग दिस थ्योरी को अप्लाई किए कैसे? द स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals, because the d orbital is also electron density and metals is in definite geometry. Electrostatic interactions between the metal d orbital as well as ligand electron densities. Okay, so different geometries, different set of orbitals. Okay, we will come in octahedral systems here. But when we talking about the tetrahedral, when we talking about the square planar complex, ये जो एनर्जी सेट्स है वो एनर्जी सेट्स डिफरेंट हो जाएगा. क्यों डिफरेंट हो जाएगा? बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड एज वेल एज मेटल d electrons or metal d orbitals is different due to different orientations. Okay, so that's why this part is different. That is why this model or concept is known as crystal field theory, because it is the main concept is like a concept of crystal. So we know there is 5d orbitals, that is dxy, yz and zx and dx square minus y square and dz squares. Okay, there is five set of orbitals. So here ये octahedral complex को cubic box में put करोगे तो मेटल जो है वो क्यूब का सेंटर में रहेगा. लिगेंड्स है जो 6 ligands the occupy the middle of the side of a cube. सो मैं कुछ पेपर कटिंग किया हूं ये 3 डायमेंशनल को समझाने के लिए. मान लो ये जो 4 लोब्स है, 4 लोब्स, पहले हम ये तीनों सेट को समझाएंगे, dxy, yz एंड dxz को. dxy को पहले समझो, dxy को तुम लोग समझ जाओगे तो यू क्लियरली विल अंडरस्टैंड dyz एंड dxz. dxz क्या है? ये मानो वो क्यूब को हमको यहाँ ले आए तो यहाँ एक जो ऊपर है ये एक लिगेंड रहेगा, नीचे एक लिगेंड्स, इस तरफ सरफेस में और प्लेन में एक लिगेंड्स, इस तरफ प्लेन में एक लिगेंड, इन बिटवीन द साइड, इन हियर दिस मिडिल ऑफ द साइड वन लिगेंड, और इसमें एक लिगेंड है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल. कंप्लीट द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. लिगेंड्स की पोजीशंस, तो लिगेंड्स के पोजीशंस है. अब हम कंसीडर करें मेटल का ऑर्बिटल्स. जो तो एक्सिस क्या है? ये है प्लस, ये अगर माइनस एक्स है इस तरफ प्लस एक्स इन मिडिल, ये अगर y है तो इस तरफ प्लस y, अंदर की तरफ जो है इनर साइड इज माइनस y, और अबव जो है अगर प्लस z होगा तो नीचे होगा माइनस z. ओके, सो व्हाट अबाउट xy ऑर्बिटल्स? xy मीनिंग दैट इज नॉट अलोंग द x एंड y, इट इज इन बिटवीन. सो x एक्सिस इस तरफ है, y एक्सिस इस तरफ है. तो xy कैसे रहेगा बच्चों? xy जो है बच्चों इस तरफ रहेगा, इस xy. सो दैट्स द कॉर्नर साइड वॉल. इस तरफ गया है x एक्सिस, इस तरफ गया है y एक्सिस, so that is the orbital lobes is not along the axis, it is in between the axis, that is xy. तो yz कैसा रहेगा बच्चों? y है इस तरफ और z है इस तरफ. so according to अगर yz होगा तो ये हो गया y और ये हो गया z. तो z एक्सिस इस तरफ है तो along तो ही रहेगा, इन बिटवीन्स रहेगा, इन बिटवीन्स. ये हो गया z एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस. तो ना y एक्सिस को कोई भी ऑर्बिटल पेनिट्रेट कर रहा है ना z एक्सिस को कर रहा है. सो इट इज द कंफ्यूज, ये हो गया, इट इज yz एक्सिस. एंड व्हाट इज xz? xz जो है ना x बराबर जाएगा ना y बराबर जाएगा. देखो that is xz. So the orbital lobes not along z axis
not along or x-axis. So it is y-xz plane but not along x and z. Okay, so that is the three sets of orbital. Then we consider dx square minus y square. dx square minus y square लोब क्या बच्चों? That is the set of एक लोब है. That means there is a direct interactions between the ligand as well as dx square minus y square orbitals. Then if we will go to the dz square orbitals. जो ऊपर जो इन द मिडिल है, इन मिडिल में बच्चों लिगेंड्स भी है और ऑर्बिटल्स में है. So that is again the electrostatic interaction between the ligand as well as dz square orbitals. So what is the conclusions? What is the conclusions of interaction, or you can say electrostatic interactions between the ligands and the d orbitals? So we have two set of orbitals. One set है dx square minus y square. ये जो दो सेट है बच्चों, ये दो सेट है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व with electrostatic interaction between the ligand surface or ligand directions. और जो तीन है बच्चों dxy, yz एंड zx, ये तीनों जो सेट्स है बच्चों, ये तीनों not directly, it is in betweens. Okay, there is, I am divided in three phases and the total splittings of the d orbitals. फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज है फ्री आयन. व्हाट इज द फ्री आयन मींस? फ्री आयन मींस जो है बच्चों द लिगेंड्स and the metal ion and ligands are at infinite distance. What is the meaning of infinite distance? Infinite distance meaning there is no such electrostatic interactions in between metal and ligands. Then we will go spherical environment. Spherical environment means that is a hypothetical concept. Sir, what is the meaning of hypothetical concept? सर इस फेज का मतलब क्या है? इस फेज का मतलब है जो लिगेंड्स आ रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए मेटल के पास, बट दे स्टिल नॉट form the octahedral geometry. That is the pre-octahedral geometry. They are coming isotropically or you can say spherically. मतलब जो d ऑर्बिटल के साथ जो 5 ऑर्बिटल्स है उसके साथ जो इंटरेक्शन होगा that is equally probable. So equally probable जब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन सबके साथ सेम होगा, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जब सबके साथ सेम होगा तब एनर्जी जो लिफ्ट होगा that is सेम. तो पहले जो ये देखो बच्चों, ये है एनर्जी एक्सिस में बहुत सारे तुम लोग ये देखोगे, वीडियो देखोगे जो एनर्जी एक्सिस को नहीं दिया है और ऐसे ही बात कर दिया है, बट इज नॉट. ये एनर्जी एक्सिस है. जब ये फ्री आयन रहेगा तो दैट इज 5d ऑर्बिटल इज स्टेबलाइज. बट व्हेन द सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट और यू कैन से हाइपोथेटिकल स्फेरिकली सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट, द एनर्जी इज लिफ्टेड बी डिस्टर्ब. ओके, डिस्टर्ब भी कह सकते हो. तब एनर्जी लिफ्ट हुआ है लेकिन जो एनर्जी हो वो डिवाइड नहीं हुआ है. उसके बाद डिवाइड होगा फेज 3 में. फेज 3 का मतलब क्या है? जब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री और एनवायरनमेंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर गया है. तब क्या, ये जो दो सेट्स है, दो सेट्स को ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म है इसको बोला जाता है डबली डिजेनरेट. Doubly degenerate. What is the meaning of doubly degenerate? Because the two orbital is there, so doubly, and degenerate means the same, the orbital has or the energy states have equal energy. So equal energy states how many? 2. So it can say doubly degenerate and defined as Eg. Okay, in equal energy, so it is known as triply degenerate state and termed as T2G. ये T1G, T2G, ये जो टर्म है बच्चों T2G, EG, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है. ये हायर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ग्रुप थ्योरी है, वहां से उस चैप्टर से वे कलेक्ट होके आया है. ओके, बट EG सेट्स का मतलब है डबली डिजेनरेट और T2G का मतलब है ट्रिपली डिजेनरेट है, और G का मतलब है इन ऑक्टाहेड्रल केस जब सेंटर ऑफ इन्वर्सन इज प्रेजेंट. सेंटर ऑफ इन्वर्सन मींस किसी एक लिगेंड के तुम एक्सटेंड करोगे थ्रू मेटल्स 180 डिग्री में दूसरा लिगेंड तुम्हें मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्सन. दैट इज ऑक्टाहेड्रल केस. यू हैव
G term, that is a Girardi. Girardi means the molecule possesses center of inversion. But when we go to the tetrahedral systems, the tetrahedral systems no center of inversions. क्योंकि जो एक लिगेंड्स के तुम प्रोसीड करोगे दूसरी तरफ, देयर इज नो लिगेंड इज प्रेजेंट. तो टेट्राहेड्रल के जब टेट्राहेड्रल ड्रॉ करेंगे उसमें हम वो जी टर्म नहीं देंगे, बिकॉज कारण क्या है, उसको जो सेंटर ऑफ इन्वर्सन नहीं है. ओके, हम लोग क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं. और ये जो सिस्टम है, ये जो जियोमेट्री है, वो क्या है, वो ऑक्टाहेड्रल है. इसलिए जिसको रिप्रेजेंट करता है, जो ईजू और T2G सेट का जो डिफरेंस है, दैट इज द डेल ओ. मींस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और किसी किसी बुक में दिया हुआ है लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. माइनस साइन डिनोट दैट इट इज स्टेबलाइज्ड वन. ओके, and if you go EG set is destabilized, उसमें क्या है, plus sign is there. Okay, so here how many orbital is there, sir? Here number of orbital is the T2G set is 3. So 3 into 0.4, 3 into 0.4 अगर करोगे so that is minus 1.2 del O. Okay, and in the above how many destabilized orbital, 2. So 2 into plus 0.6 into 2 del O करोगे, that is plus 1.2. What is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग है टू मेंटेन जो है ये टर्म, ये क्या है, ये है बैरी सेंटर, ये है बैरी सेंटर, ये है बैरी सेंटर. Berry center means the energy value is 0. Energy value is 0. That's why it is 0.4 del O minus means stabilize, and it is plus 0.6 del O. Del O का जो मतलब है that is also 10 dq है. तो हाई स्पिन जो होगा बच्चों, that is स्पिन फ्री कंडीशंस, और जो लो स्पिन होगा that is स्पिन पेयर्ड कंडीशंस. ओके, so what is mean the spin free or spin paired? Spin free means number of, in the high spin means number of unpaired spin is more, and in low spin number of unpaired spin is less. Okay, तो बच्चों हम इस कंक्लूजन में आए हैं, there is two types of situation in octahedral complexes. Situation 1, when the crystal field splitting energy is lower than pairing energy, जिसमें कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. और एक सिचुएशन है जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेलो इज हायर देन पेयरिंग एनर्जी. इन दिस सिचुएशन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विल फॉर्म. ओके, फॉर D4 टू D7 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बच्चों, उसमें हाई स्पिन और लो स्पिन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगा. ओके, लाइक D4 में केस में क्या, T2G3 एंड EG1. ओके, दिस हाई स्पिन. लेकिन लो स्पिन में क्या, लो स्पिन में होगा T2G के केस में 1 2 3 4 एंड EG0. एक बात मैं यहां बोल देता हूं बच्चे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम D6 में D6 के केस में जाओगे बच्चों, for low spin case it is T2G6 EG0. That means there is no electron in the unstable EG set. All the electrons are in stable T2G set, deeply degenerate set. अब तुम लोग जानते हो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो एनर्जी है माइनस स्टेबलाइज 0.4 डेलो करके. तो देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगा, दैट इज माइनस मीन स्टेबलाइज्ड 2.4 डेलो और 24 dq, highest amount of crystal field stabilization energy. Okay, so it is all about the electronic configurations having high spin and low spin complexes. Okay, मैं एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा और बाद में और भी प्रॉब्लम्स और थोड़ा
जो कंटेंट है वो भी बचा हुआ है, उसको मैं भी एनकाउंटर करूंगा। उसके बाद तुम लोग देखोगे एट द एंड ऑफ माय लेक्चर वट एवर मे बी द क्वेश्चंस, कि मैं एंड में और भी जेईई मेंस का एडवांस का क्वेश्चन मैं तुम लोगों को मैं दूंगा, मैं खुद यहाँ सॉल्व करूंगा with the help of my lecture note you can solve, ओके। लेकिन तुम लोगों से बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आराम से पढ़ना पहले और कॉपी में एक नोट डाउन कर लेना, ओके। उसके बाद तुम लोग जेईई मेंस, एडवांस, जैम और इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, मुझे जो बॉक्स है, जो इनबॉक्स है उसमें टेक्स्ट कर देना, ओके ओके। तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए विथ माय नॉलेज। तो आज का जो क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज पॉपुलरली नोन एज CFSE फॉर D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं उसमें आयरन 2 या कोबाल्ट 3+ आयंस हैं इन हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल complexes. That means indirectly we can say the आयरन 2 और कोबाल्ट 3 का जो हाई स्पिन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें व्हाट इज द CFSE, ओके, व्हाट इज CFSE। तो पहले CFSE क्या है बच्चों ये थोड़ा जान लेता हूं। CFSE है जो बैरी सेंटर है और यू कैन से द एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, जिसको मैंने हाइपोथेटिकली बताया था, जो 5d ऑर्बिटल का एनर्जी जो लिफ्ट हुआ था, ओके, दैट इज कॉल्ड बैरी सेंटर एनर्जी। इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसमें पांचों जो एनर्जी ऑर्बिटल्स है उसका लिफ्ट किया था बच्चों, लेकिन जो ऑल द ऑर्बिटल्स हैव डिजेनरेट, सेम एनर्जी है, स्प्लिट करने से पहला स्टेप, ओके, बैरी सेंटर। तो दोनों केस है, इसमें हाई स्पिन केस जिसमें डेलो लेस देन पी पेयरिंग अनफेवरेबल, लो स्पिन जिसमें डेलो ग्रेटर देन पी पेयरिंग फेवरेबल, ओके। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने जान गए ऑलरेडी। D6 का मतलब है 1 2 3 4 5 एंड 6 में, दैट मींस T2G6 sorry T2G4 and EG2। For low spin case, what is the electronic configuration? The electronic configuration is 1 2 3 4 5 6, okay। तो T2G6 एंड EG0, EG में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, ओके। देखो मैं साइंटिफिकली कैसे कोशिश किया हूं बनाने के लिए डायग्राम। देखो ये जो एनर्जी है डेलो है, वो जो हाई स्पिन मतलब डेलो ऑफ हाई स्पिन is less than del of low spin। मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताने की कोशिश किया है। इसका जो डेलो गैप है हाई स्पिन के केस में देखो इतना सही है एनर्जी गैप, बट इन के केस ऑफ डेलो ऑफ लो स्पिन वो बहुत ही हाई है। और इसको भी मैंने मेंटेन करने की कोशिश किया है। इसको जो है प्लस 0.6 है, ये स्टेबलाइज माइनस 0.4 है, इसको भी मैंने कोशिश किया है ऐसे करके, ओके ठीक। तो CFSE जो क्या है बच्चों, CFSE जनरल एक रूल है CFSE का। तो CFSE है इसके रिस्पेक्ट में बैरी सेंटर की और जो एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड था, क्रिस्टल फील्ड था, उस पे रिस्पेक्ट में कितना है, ओके। तो ये तो स्टेबलाइज्ड बाय -0.4 यूनिट इंटू x प्लस 0.6 इंटू y डेल ओ। ये x जो है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, x जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, ओके, स्टेबलाइज्ड है। और y जो है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो what is the CFSE for high spin case? What is the CFSE for high spin case? For high spin case, the energy is minus 0.4 into 4 plus 0.6 into 2 del O, okay।
एंड व्हाट अबाउट पेयरिंग एनर्जी, इसमें एक पेयरिंग है और बैरिसेंटर में भी एक पेयरिंग होता है। तो किसी किसी बुक में एक पेयरिंग दिया है और किसी किसी बुक में विथ, अगर ये बैरिसेंटर्स में रेस्पेक्ट जो एनर्जी है, दैट मीन्स सीएपीसी मतलब क्या है, जो एक्चुअल एनर्जी है वो बैरिसेंटर माइनस द एक्चुअल एनर्जी फॉर कॉन्फ़िगरेशंस। तो बैरिसेंटर में इसका जीरो है एनर्जी, मान लिए जीरो, लेकिन एक पेयरिंग एनर्जी है। ओके, इसमें भी स्टेबलाइज दिस अमाउंट है प्लस एक पेयरिंग एनर्जी है। तो मोर एक्यूरेटली वी कैन से दैट देयर इज नो पेयरिंग एनर्जी बैरिसेंटर के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर तुम लोग जेईई एडवांस का पेपर देखोगे ना, वो लोग ये कंफ्यूजन के लिए और मेंस में वो लोग पेयरिंग एनर्जी को ओमिट कर देता है, क्योंकि बच्चों के कंफ्यूज्ड हो जाता है। बच्चों को सब हर बच्चे सीखता है ये पेयरिंग एनर्जी, तो कुछ कुछ जगह पर ये पेयरिंग एनर्जी को अवॉइड कर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक, वो लोग एलिमिनेट करते हैं विद, मतलब वो बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी को छोड़ के कितना स्टेबलाइज एनर्जी है। ओके, इफ वी इंक्लूड द पेयरिंग एनर्जी, तब क्या है बच्चों, जो 4 into 4 minus 1/6 and plus 1/2 del O plus P, that means 0.4 del O plus P, और एक्यूरेटली तुम जो करोगे तो है -0.4 del O, very accurately. What is happening in the case of low spin case? In the low spin case, 0.4 into 6 plus 0.6 into 0 del O plus 3p है, लेकिन मोर एक्यूरेटली 2p, क्योंकि इसमें 3p है और एक बैरिसेंटर में है एक p, तो एक p कट जाएगा, 2p इज द मोर एक्यूरेटली। तो ये -2.4 del O plus 3p, और मोर एक्यूरेटली यू कैन से 2p। ठीक, डेलो में करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये इसमें होगा 0.4 मतलब 4 डेलो 4 DQ, क्योंकि 10 डेलो मीन्स 10 DQ, तो 10 DQ मतलब 10 से तुम मल्टीप्लाई करके तुम DQ निकाल सकते हो। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। क्लियर? सो in the case of high spin case, it is -0.4 del O plus P, or very accurately you can say 0.4 del O. For low spin case, it is -24 del O plus 3p, and more accurate, spin only magnetic moment nu equal to root over of n into n plus 2 Bohr magneton. Spin only means there is जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, देयर इज टू कंट्रीब्यूशंस जो है तुम लोगों बच्चों, तुम ये ग्रेजुएशन में है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, ये देयर इज टू टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मूवमेंट, वन इज द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस एंड देयर इज द स्पिन कंट्रीब्यूशंस। ओके, और जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा एनहांस कर जाता है। ओके, तुम लोगों का नहीं है टॉपिक्स में, ये ओनली स्पिन ओनली इसलिए लिख देता है, स्पिन ओनली तुम लोग जो देखते हो हर जगह स्पिन ओनली मतलब है, और देयर इज नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस। ओके, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट n into n plus 2 Bohr magneton, whereas the unpaired electrons present, okay, in such complex। तो ये मैंने एक चार्ट दे दिया है, when 1 1.73 Bohr magneton, 2 2.83 Bohr magneton, when 3 electrons 3.87, when 4 4.9, when 5 5.91। जब ये अनपेयर्ड है, 5 हाईएस्ट डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स 5 सेल्स हैं, इसमें 5 का मतलब है हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा 5, उसके बाद जो है पेयर ऑफ हो जाएगा बच्चों। ओके, देखो बच्चे कोरिलेटेड कभी कभी बोल देता है, अगर बोर मैग्नेटॉन इतना है तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दरमियान माइना अगर देखो 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके करना। और एक देखो बच्चों, देख
फॉर हाई स्पिन केस तो इसमें जो है T2G और इसमें है EG, तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ओके, T2G में, और in case of low spin all the T2G set orbitals or T2G set is filled by the electron, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n equal to 0 for low spin, तो लो स्पिन जब होगा तो n equal to 0, स्पिन मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 डायामैग्नेटिक इन नेचर। नो अगर स्पिन मोमेंट नहीं रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होगा बच्चों? ये डायामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड स्पिन ऑनली वैल्यूज फॉर D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आयरन 2 एंड कोबाल्ट 3 है। ओके